So, hi guys, this is Navdeep here. This is my second part on Tughlaq dynasty. Till in the last part, I discussed till Muhammad bin Tughlaq. Okay, MBT was done. Though there will be, if there is any question regarding MBT, that will be discussed. If there is any remaining, that will be done in the overall Delhi Sultanate. Surely it will be covered there if there is any remaining. But I don't think there is any remaining question. Now, after MBT died in 1351, there was a chaos. Okay, his five expeditions left empire in such a vulnerable state that nobody wanted to be a sultan. Okay, there was a huge loss of treasury. Okay, nobles were upset, and most of the nobles here, it should be noted, that were ulemas, the Muslim Orthodox, Tablighi Jamaat wale. So most of these nobles were ulemas. They were really upset. Why? Because they wanted the orthodox sons of Islam to be reinstated in the Indian state of Delhi Sultanate. But Muhammad bin Tughlaq was bent mostly towards Sufi saint that we did last time. Okay, so he was bent more towards the Sufi saint. Now, these nobles really wanted someone who can be orthodox, okay, who can rule in a Islamic manner, who can rule in Islamic manner. Now, first of all, there was no one who was ready to be part of this empire, who really wanted to be Sultan of this empire. Muhammad bin Tughlaq had an uncle. Okay, he had this uncle had a son of him. That was Firoz Shah Tughlaq. Somehow, ulemas under Maqbul Jahan or Jahan Maqbul persuaded him to be Sultan. Okay, they persuaded him to be Sultan. How they persuaded him was different question. But the thing was that at the end, ulema somehow persuaded him. If we see the question, if we see the if a chronology, after Alauddin Khilji, it was Firoz Shah Tughlaq, who is said to be who is said to have been ruling in the name of Caliph. Okay, the role of Caliph and what Caliph meant for the Muslim empire, different Caliph families and all, we have discussed already in the Muslim invasions. Okay, foreign invasions, that topic of mine from Baraso. Okay, so that is a separate topic. We have discussed that in detail. But the thing here was that the ulemas, especially the Maqbul Jahan, persuaded this Firoz Shah Tughlaq to be a ruler, and ruler that in name of Caliph. He called himself, Firoz Shah Tughlaq called himself as a right hand of Caliph. And the first one was Alauddin Khilji. Okay. So when you are ruling as a right hand of Caliph, you are very orthodox. You are very orthodox. It should be noted here that Firoz Shah Tughlaq was not orthodox. When he became a king, जो इसके दिमाग में थी चीज वो ये थी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो गलतियां की हैं, जो सिटीजन्स का नुकसान हुआ है, दे शुड बी गिवन ए रिलीफ. दे शुड बी गिवन ए रिलीफ. तो ये चाहता था मैं हर कोई पॉलिसी, जो भी पॉलिसी बनाऊं, वो पॉलिसी में ऐसी बनाऊं कि जो इनके ऊपर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो पीपल जो डिससेटिस्फाइड थे स्टेट से, वो डिससेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो कम हो जाए.
और डिससेटिस्फेक्शन का लेवल कम हो जाए। अब उल्लेमास के कहने पे फिरोज शाह तुगलक किंग बन जाता है। किंग बनते ही पहला काम ये करता है कि जो मुस्लिम वुमेन्स हैं, जो सूफी सेंट्स की मज़ार पे जाती हैं, उसको ये बंद करवा देता है, इस प्रैक्टिस को ये कैंसिल करवा देता है, कहता है ये अलाउड नहीं। ओके, तो जो इनविजिबल हैंड था इसकी इस पॉलिसीज में, वो कौन था? वो उलेमास का था। ओके, तो पहले मुस्लिम जो वुमेन है उनको सूफी श्राइन्स पे जाना जो है, तो दरगाह मज़ार पे जाना जो, वो बंद करवा देते हैं। दूसरा काम ये करता है कि जो जजिया है, जजिया को रीइम्पोज करवाते हैं। अब जजिया है क्या? जजिया क्या है कि अगर जो नॉन मुस्लिम्स हैं, दे हैव टू पे ए टैक्स टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, and if they don't want to pay this jizya checks, they have to convert to Islam. So there was a choice, either आप जजिया दे दे या तो फिर इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। तो जजिया जो है फिर से रीइम्पोज हो गया। फिर से जो इनविजिबल हैंड है वो उलेमास का था। अब उलेमास जो है वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, तो मुस्लिम्स जो यहाँ पे रहते थे उन पे ज़कात भी लग गया। ओके, ज़कात नाम का टैक्स भी लग गया। अब ये टैक्स का कितना कितना वैल्यू था, क्या था, वी विल डू इन द लेटर इकोनॉमिक पार्ट ऑफ आवर्स। ओके, तो ज़कात भी दे लग गया। लेकिन जजिया और ज़कात तो आपने लगा दिया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक अपनी तरफ से क्या करते हैं, 28 टैक्सेस ऐसे होते हैं जिन्हें ये कहते हैं कि अन इस्लामिक, जिन्हें ये क्या कहते हैं कि ये अन इस्लामिक टैक्सेस। इन अन इस्लामिक टैक्सेस को ये बंद करवा देते हैं। इन अन इस्लामिक टैक्सेस को ये बंद करवा देते हैं। अब आप देखिए, पहले ही मोहम्मद बिन तुगलक अपने 5 एडवेंचरस आइडियाज के साथ आपकी ट्रेजरी जो है खाली कर गया। उसके बाद आप 28 जो टैक्सेस है, छोटे या बड़े, 28 उनको आप बंद करवा देते हैं। तो जब आप ऐसा करते तो कहीं ना कहीं जो आपका रेवेन्यू है वो कहां जाएगा? रेवेन्यू तो लॉस में जाएगा आपका। जबकि इस वक्त आपको और टैक्सेस और सख्ती से लगाने चाहिए थे ताकि आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए, एक एम्पायर में स्टेबिलिटी आ जाए। तो आपका रेवेन्यू नीचे चला गया। ओके, रेवेन्यू आपका नीचे चला गया। अब मैंने जैसे आपसे कहा, जो ये फिरोज शाह तुगलक थे, ये ह्यूमैनिटेरियन थे, ह्यूमन वेलफेयर के काम करते थे। अब फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है जिसके पास फॉर एग्जाम्पल वैसे 100 रुपीज है, अगर वो 90 रुपीज दान में दे देता है, 10 रुपीज उसके पास रह जाते हैं और उससे उसको पूरे घर का खर्चा चलाना है, तो क्या वो चला पाएगा? नहीं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये कैश क्रंच आ जाएगा। जो फैमिली मेंबर्स है वो रिवॉल्ट कर देंगे कि आप इतना ज्यादा क्यों कर। अभी भले ही रिवॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन हम देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक कहते हैं कि मेरे यहाँ पे, मेरे अंपायर में कोई भी बंदा जो है वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहना चाहिए। जो भी बंदा है वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट को ये खत्म करना चाहते। तो ये क्या करते, एक अपने यहीं पर अपने जो इनका स्टेट था, स्टेट में ही कारखानास बनाना शुरू कर देते। इन कारखानास में ये बंदों को एम्प्लॉय करना शुरू कर देते। अब जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं, कारखानास जो थे, कारखानास वर सपोज टू सर्व द डिमांड्स ऑफ कोर्ट। ओके, जो आपकी किंग और किंगडम, किंग की जो फैमिली है, किंग का जो ऑफिस है, या फुल जो हम ये कह सकते हैं जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उसकी डिमांड्स को इस कारखानास ने फुलफिल करना था। और इस कारखानास में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के नाम पे काफी बंदे घुसाए जाते हैं। स्किल्ड भी होते हैं और अनस्किल्ड भी होते हैं, और कुछ बिल्कुल ही जिसे हम कहते हैं कि जिसको कुछ भी नहीं आता, वैसे वैसे लोग। अब काम तो वो कुछ कर नहीं रहे,
सैलरी तो वो स्टेट से लेंगे। अब आप ये देखिए कि सैलरी तो पंप इन हो रही है, लेकिन जो आउटपुट है वो जितना भी आ रहा है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने यूज करना है, तो उसका भी आपको कोई रेवेन्यू मिलेगा नहीं। तो यहां पर भी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में भी जाती है लॉस। फिर आपको रेवेन्यू क्या होता है, नीचे जाता है। अब फिरोज शाह तुगलक जो थे, अब जहां इतना हो गया, जहां इतना आपने इतना कर दिया, वो एक हिसाब से एक नया टाउन्स भी बनाते थे, टाउन्स में लोगों को सेटल भी कराना चाहते थे। ऐसे ही इन्होंने जो है फिरोज शाह कोटा जो हमारा रिसेंट है, जहां पे स्टेडियम है फिरोज शाह कोटा, वो सिटी का इन्होंने फाउंड किया दिल्ली के बीच में ही। अब जब आप एक सिटी डिजाइन करते हैं तो आपका फिर रेवेन्यू लॉस में जाता है, आप फिर से रेवेन्यू के लॉस में जाते हैं, क्योंकि सिटी फाउंड करने में, वहां पे फिर कंस्ट्रक्शन करने में तो पैसा जाता है, तो आप कहीं ना कहीं फिर से लॉस में चले जाते हैं। ओके, अब जो आपका पूरा डे टू डे वर्क है, जो इतना भी आपका डे टू डे जो वर्क है, वो डे टू डे वर्क के लिए आप डिपेंडेंट रहते हैं। एक तो आप, जैसे मैंने कहा था, उलमा जो थे आपके जहां मकबूल, उन पे डिपेंडेंट रहते हैं। दूसरा आप रहते हैं मलिक मकबूल पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब जो ये आपके मलिक मकबूल है, ये आपके एक तो नोबल भी हैं, दूसरे ऊपर आपका डे टू डे काम भी यही करते हैं। अब ये मलिक मकबूल जो है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो है यही देख रहे थे। ओके, तो आप एक बात बताइए कि अगर रेवेन्यू लॉस में जा रहा है, किंग अपनी पॉलिसी चला पा रहा है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली नहीं देखता है, तो उसे बहुत लेट पता चलेगा कि उसका खजाना जो है वो खाली हो। फिरोज शाह तुगलक एक के बाद एक एक्सपीडिशंस करते जा रहे थे, मलिक मकबूल डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। तो इन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि जो इन्होंने टैक्सेस लॉस किए, जो सिटी बनाने, तो सिटी जो है लॉस में जा रही। पहले ही मोहम्मद बिन तुगलक की जो पॉलिसी थी, उन्होंने स्टेट को लॉस में लिया हुआ है। ओके, अब मलिक मकबूल के बारे में क्या कहें कि इन्हें जो फिरोज तुगलक हैं, वो इन्हें अपने ब्रदर कहते थे और इन्हें खाने जहान कहते थे। तो इन्हें टाइटल दिया हुआ था खाने जहान, खाने जहान। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु इज रेफर टू एज खाने जहान इन दिल्ली सल्तनत। तो खाने जहान जो है मलिक मकबूल को कहा जाता था। ओके, सो पहले थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। रजाब इनके फादर का नाम था, यंग ब्रदर थे गाजी मलिक के, यानी गयाजुद्दीन तुगलक के, फादर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हें टाइटल दिया गया था सिविल सलार का। ओके, इन्हें टाइटल दिया गया था सिविल सलार का। मोहम्मद बिन तुगलक जब थाता जाते हैं, वहां पे जब उनकी डेथ हो जाती है, थाता वो जाते हैं टागी रूलर जो गुजरात के थे, उनको, टागी जो रूलर थे गुजरात के, उनको हराने के लिए, लेकिन वहां उनकी डेथ हो जाती है। फिर मैंने आपको ये बताया कि स्ट्रीट जो आपकी कंडीशन थी दिल्ली में, वो क्या थी, कयस की थी। कोई किंग बनना नहीं चाहता था, तो नोबल्स ने मिलकर, उलेमास जो जिसमें मोस्टली थे, उन्होंने फिरोज शाह को बनाया। शरिया रिवाइव हुआ और फिरोज डिक्लेयर करते अपने आप को एज द राइट हैंड ऑफ खलीफा। ओके, तो अब ये कुछ ऐसी चीजें जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। फिरोज शाह तुगलक की जो ऑटोबायोग्राफी थी वो फुतूहत फिरोज शाही है। ऑटोबायोग्राफी यानी खुद ही लिखी हुई है, तो ये भी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आपके लिए बनता है। अब फिरोज शाह, जैसे मैंने आपसे कहा कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क के बंदे थे। बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोलना, इन्होंने यूनानी हॉस्पिटल्स भी खोले हुए थे, रोड्स बनाना और कैनल्स बनाना, फॉर द केस, फॉर द कीपिंग व्यू द एग्रीकल्चर इन माइंड। इनका ये था कि अगर मैं कैनल्स बनाऊंगा, बहुत सारे कनाल्स बनाऊंगा, तो एग्रीकल्चर जो है ऊपर जाएगा, तो मेरा टैक्सेशन भी ऊपर जाएगा।
दो कुछ हद तक ये हुआ, लेकिन जो आपके बाकी के खर्चे थे वो उसने रिजर्व को वापस मेंटेन जीरो पे ही ले आया था. ओके, ही इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एम्पायर बिल्डिंग कैनल्स, रेंट रेस्ट हाउसेस, हॉस्पिटल्स. ही फाउंडेड सेवरल सिटीज अराउंड दिल्ली इंक्लूडिंग फिरोजा कोटला, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर. और जब आप इतनी सारी सिटीज बना लेते हैं तो यू आर स्टिल इन लॉस, तो आपको लॉस इन रेवेन्यू हो ही रहा है. ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही की थी कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ उलेमास जो मुस्लिम मूवमेंट प्रैक्टिस करने जाती है तो सूफी सेंट्स की ग्रे पे, जिसे मज़ार कहा जाता है, उसे ये बंद करवाते हैं. ओके, अब क्योंकि ऑर्थोडॉक्स थे तो हिंदू टेम्पल्स इनके टारगेट पे रहते ही रहते थे. तो फिरोज शाह के साथ जुड़ा हुआ है जगन्नाथ टेम्पल, जहाँ पे इन्होंने अटैक किया. ओके, अटैक किया और फोर्स किया राजा गजपति जो कि उड़ीसा के किंग थे उनको कि वो आपको ट्रिब्यूट पे करे. अब जो हमारे चौहान राजपूत जो है, जो मेजॉरिटी पाकिस्तान में रहते हैं, चौहान राजपूत, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने ही कन्वर्ट किए हैं. तो चौहान राजपूत को इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया. इन्हीं को कहा जाता है कैम खानीज इन राजस्थान. ओके, सो ये वो कुछ ऐसी चीजें थी जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं. ओके, अब आता है बात कि इन्होंने कांगड़ा फोर्ट, कांगड़ा को जो है नगर कोट कहते थे पहले, कांगड़ा यानी हिमाचल प्रदेश में, वहां पे इन्होंने अटैक करने की कोशिश की और वहां के किंग को बोला कि हमें ट्रिब्यूट पे करे. सेम ही डिड विद थाटा सिंध, जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक को मर गए थे, जिस जहाँ पे एक्सपेडिशन या कैप्चर करते करते मोहम्मद बिन टिगरी टागी ने मारे हुए थे, जो हमने लास्ट में किया हुआ है वीडियो लेक्चर में. इन्होंने शरिया टैक्सेस, जजिया एंड जगास स्ट्रिक्ट कर दिए. 28 टैक्सेस जो है वो अन इस्लामिक बोल के बंद कर दिए. दस लॉस ऑफ रेवेन्यू अगेन. ही गेव लार्ज एम्प्लॉयमेंट टू द इनकम्पिटेंट पीपल, फिर से लॉस ऑफ रेवेन्यू. अब इक्तादारी जो सिस्टम था वो काफी टाइम से जो हो गया था, बंद किया गया था. फिरोज शाह तुगलक क्योंकि नोबल्स ने ही बनाए हुए थे, नोबल्स के ही यस मैन थे, तो ये ना सिर्फ इसे वापस से रिवाइव करते बल्कि इसे हेरिडिटरी भी बना देते. अब आप ये देखिए कि एक अंपायर है, अगर इसका एक इक्ता एक नोबेल को दिया हुआ है और एक दूसरे नोबेल को मिला हुआ है, अब इक्तादारी जो है वो हेरिडिटरी भी होगी, यानी जो इसका बेटा आएगा वो आगे इसका बनेगा इक्तादार, इसका बेटा जो आएगा वो आगे इसी लैंड का इक्तादार बनेगा. तो कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम आएगा जब डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी और ये वाली जो छोटी छोटी जो इक्तादारी है आपस में मिलकर एक नई किंगडम बन जाएगी. और ऐसा हुआ भी काफी जगह पे. अगर आप देखेंगे काफी सारे, हम अभी देखेंगे कि काफी जगह पे यही सेम रीजन बना कि तुगलक्स के बाद जाने के बाद जो छोटी छोटी बहुत सारी किंगडम्स जो है इमर्ज हुई. ओके, अब सोल्जर खाली सन को नहीं कर सकता था, बेटा नहीं. अगर उसका बेटा नहीं है तो वो अपने सन इन लॉ को बना सकता था, ट्रांसफर कर सकता था. अगर सन इन लॉ भी नहीं है तो अपने स्लेव तक को ट्रांसफर कर सकता था. तो अब इक्ता सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं मैस बन चुका था. अब क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो है नोबल्स ने ही बनाया था, ओके, तो नोबल्स ने सबसे पहला जो काम किया अपनी सैलरी जो है वो इंक्रीज करवाई. फिर से आपका लॉस इन रेवेन्यू. आप ये देखिए कि एक तरफ ये काम अच्छे करता जा रहा है, दूसरी तरफ इसका जो रेवेन्यू वो नीचे आता जा रहा है. इट इज नॉट स्टेबल. ओके, अब हमें ये भी देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो लैंड टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज किया गया था. फिरोज शाह तुगलक आते हैं उसको फिर से लो कर देते हैं टैक्सेस को, फिर से लॉस इन रेवेन्यू. ठीक है, अब फिरोज शाह तुगलक जो है, अब आप ऐसे देख लीजिए कि अगर कोई, हमारे नेबरिंग कंट्रीज में अगर हम देखें तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है वो बना
आर्मी की सपोर्ट से। ओके, इधर मैं फॉर एग्जांपल नहीं बोलूंगा, ये सच भी है, ठीक है। तो वो बना आर्मी की सपोर्ट से। तो अगर आर्मी के बीच में करप्शन हो रही है, जो कि रिसेंटली अगर आपने न्यूज में देखा होगा, तो वहां के एक जनरल के काफी ज्यादा जो है स्टेट्स मिले हैं, बेनामी संपत्ति मिली उसके नाम पे। तो क्या प्राइम मिनिस्टर उस पर जो एक्शन ले सकता है? नहीं। ऐसे यहां पर क्या हो गया, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, क्योंकि इसे बनाया ही नोबल्स की मेहरबानी से था, तो करप्शन बहुत ज्यादा होगी थी नोबल में। और दिल्ली सल्तनत में, पूरे मिडाइवल इंडिया में सबसे ज्यादा जो करप्शन है वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे थे। ओके। और एक स्टोरी भी है इनकी कि ये खुद ही पैसा देके, गोल्डन तंका देके, एक हॉर्स को जो है, एक सोल्जर को गोल्डन तंका देते, ताकि एक एक हॉर्स को जो है, सब स्टैंडर्ड हॉर्स जो इनका है वो पास हो जाए और वो रिक्रूट हो जाए। तो एक ऐसी आप स्टोरीज देखेंगे एनसीईआरटी में लिखा होती है। फिर जैसे मैंने आपसे कहा, ह्यूमैनिटेरियन जो काम है इनके वो बहुत ज्यादा थे। इन्होंने जो एक दीवान खैरात डिपार्टमेंट बनाया, जो कि जो गरीब लोग थे, गरीब लड़कियां थी, उनकी शादी करवाते थे। ये एड्स के साथ डील करता था, एड्स टू पोर, एड एंड असिस्टेंस टू पोर। ओके। फिर इनका दूसरा डिपार्टमेंट था दीवान बंदगा, जो स्लेव्स के साथ डील करता था। ओके। फिरोज शाह पैलेस कॉम्प्लेक्स जो हिसार में, वो ये बनाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान ने जो यमुना, वेस्टर्न यमुना कनाल बनाया था, उससे ये वापस से रिवाइव करते हैं। और ये काफी ज्यादा जो है पार्क्स, फ्रूट के पार्क्स लगाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रूट के ऑर्चर्ड्स लगाते हैं रेवेन्यू के लिए। कैनल सिस्टम तो इन्होंने कर ही दिया था एम्फेसाइज, लेकिन ये स्टेट की तरफ से बहुत ज्यादा ऑर्चर्ड्स लगाते हैं। अब इन ऑर्चर्ड्स का एक फायदा था कि फ्रूट्स की तरफ से इन्हें पता था कि जो भी असिस्टेंट, जो भी रेवेन्यू आएगा वो स्टेट को डायरेक्ट आएगा, देयर इज नो मिडिल मैन। ओके, पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि फ्रूट इज समथिंग दैट कैन नेवर गेट कॉस्ट सब्साइड। मतलब आप इसकी कॉस्ट को कभी आप ये नहीं देखेंगे कि सब्डी होगी इसकी कॉस्ट, फ्रूट्स बहुत सस्ते मिल रहे हैं, बहुत कम ऐसा होता है, इसकी कॉस्ट हमेशा हाई रहती है। अब ये क्या करते हैं, उसी के साथ साथ जहां तक इतना रेवेन्यू कर चुके थे खरीद, तो दो अशोकन पिलर्स को, जो कहां कहां पे थे, मेरठ में थे और तुपारा में थे। तुपारा जो यमुनानगर में है, हरियाणा में, इन्हें कट करते हैं, वहां से उखाड़ते हैं और रैप करके सिल्क में ब्लॉक कार्ड्स पे दिल्ली लेके आते हैं और फिरोज शाह कोटला के रूफ पे एक को लगा देते। ओके। तो ये एक, सो विच रूलर, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच रूलर बॉर्ड द अशोकन पिलर्स टू दिल्ली। तो अगर आप साथ में इंफॉर्मेशन याद रखें, तो मेरठ और तुपारा जो कि यमुनानगर हरियाणा में, वहां से लाया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक था। अब जब ये इतने ज्यादा टैक्सेस बना रहा था, तो इसने एग्रीकल्चर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिसे शर्ब कहते हैं। तो ये वॉज द फर्स्ट सुल्तान जो एग्रीकल्चर टैक्स लगाता था, जिसे शर्ब कहते थे। ओके। और इसने, जैसे मैंने आपसे कहा था, बहुत सारे कारखानास बनाए थे, ताकि जो हाउस होल्ड नीड्स है वो पूरी हो सके। अब इन्हीं के टाइम पे एक और इवेंट होता है। इवेंट ये होता है कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार डैमेज होता है लाइटनिंग से 1368 पे। उसकी और टॉप की जो 2 स्टोरीज है वो डैमेज हो जाती है थ्रू लाइटनिंग। ओके। अब इसे भी ठीक करवाने का जो कार्य है वो फिरोज शाह तुगलक ने किया है। ओके, इज इट ड्यू? तो थोड़ा सा भी हम कुतुब मीनार का बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो जो ये कुतुब मीनार है, अगर आप देखेंगे तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे है। अब बनाया किसने था? ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो काफी लोगों को ये एक हिसाब से एक कंफ्यूजन है कि शायद कुतुबुद्दीन ऐबक के ही नाम पे कुतुब मीनार। नहीं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार का नाम दिया, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के नाम पे रखा गया।
ओके, सो इट इज नेम्ड आफ्टर कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। अब ये कौन थे? ये एक सूफी सेंट थे, इनके नाम पे कुतुब मीनार रखा गया। इसी कुतुब मीनार के अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो यहां पर आती है कूवतुल इस्लाम मॉस्क। ओके, तो ये जो कूवतुल इस्लाम मस्जिद है, इसका कहा जाता है कि एक टेंपल के ऊपर बनी है जो कि जैन टेंपल था, जो कि इन द मेमोरी ऑफ किंग चंद्रा बनाया गया था। चलिए बात की बात। ओके, इसकी जो एंट्रेंस है, जिसकी साइड पे जो एंट्रेंस है कुतुब मीनार की, ये शेरशाह सूरी ने बनाई है। ओके, कंप्लीट ये बलबट के टाइम पे हुई है अब बनना। ये लार्जेस्ट मिनारेट ऑफ ब्रिक्स है। ओके, अफगानिस्तान में 72.5 मीटर्स है, ये शायद 72.5 मीटर्स, राइट। और अफगानिस्तान में एक है मिनारेट ऑफ जैम, वो सेकंड नंबर पे आता है। ये अगर लार्जेस्ट मिनारेट ऑफ ब्रिक्स है तो मिनारेट ऑफ जैम जो कि अफगानिस्तान में, वो सेकंड नंबर पे आता है। ओके, तो ये थी कुछ इसके फैक्ट्स। अब शिकारगढ़ होते हैं काफी। शिकारगढ़ होता है हंटिंग लॉज। जब एक राजा हंट करने जाता है तो वो शिकारगढ़ में रुकता है। इट वॉज यूजुअली लोकेटेड अवे फ्रॉम द टाउन। तो फिरोज शाह तुगलक का एक शिकारगढ़ जो है, जिसे खुशक महल कहा जाता है, वो 3 मूर्ति जो हमारा भवन है दिल्ली का, ओके, वहां पर लोकेटेड है। ओके, अब रेवेन्यू मॉडल क्या था तुगलक्स का? फ्रूट गार्डन्स गुड रेवेन्यू देते थे, जैसे मैंने आपसे कहा था। खर्च टैक्स क्या था कि 10% आप जो भी प्रोड्यूस करेंगे एग्रीकल्चर, उसका टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है, 10% ऑफ द प्रोड्यूस। और खम्स क्या था? 20% ऑफ वॉर स्पॉइल्स, ये भी आपको देना है। इसके साथ आपका आ गया जजिया। ओके, और इसके साथ आपका प्लस आ गया जो डिफरेंट, जिसकी वैल्यू डिफरेंट होती थी। इसके बाद दूसरा आपका आ गया जजिया, एक आ गया, फिर आ गया ज़कात। तो 2 इस्लामिक टैक्स लगते थे। ये कोई कोई रूलर लगाता था, सब लगाता नहीं था ये, लेकिन तीनों के टाइम पे खरज, खम और फ्रूट गार्डन्स, जो कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे जिनसे ज्यादा रेवेन्यू आने लगा। 2 क्वाइंस थे, एक था आधा 50% ऑफ जितल, और दूसरा बीच 23% ऑफ जितल। तो 2 क्वाइंस थे, आधा और पिच। ओके, अब स्कॉलर कौन कौन रहते थे फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में? कौन कौन से स्कॉलर्स होते थे? फिर तो फिरोज शाही ऑटोबायोग्राफी, इसकी मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा है, लिखी इसने खुद ही है। जियानुद्दीन बर्नी, बर्नी जो है इनके कोर्ट में ही रहते थे। इन्हीं के टाइम पे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, बहुत सारी संस्कृत की जो बुक्स है और मेडिसिन, साइंस एंड आर्ट्स वे ट्रांसलेटेड टू पर्शियन। ओके, कुतुब फिरोज शाही, इन्हीं के टाइम पे बुक लिखी गई है जो फिजिक्स के साथ डील करती। ओके, इन्हीं के कोर्ट में एक और ऐसे स्टोरी रहते थे जिसे कहते थे अफीफ। अफीफ ये कहते हैं कि फिरोज शाह पे बहुत ज्यादा जो है असैसिनेटेड अटेम्प्ट्स हुए, और ऐसा पहला अटेम्प्ट जो था वो फिरोज शाह की, मोहम्मद बिन तुगलक की बेटी ने किया था। ओके, अब्दुल मलिक इस्मानी, जो बहामनी किंगडम को जिन्होंने फाउंड किया, वो इसी टाइम पे जो है लिखते अपनी बुक फुतूस सलातिन, जो कि पोइटिक है। पोइटिक में बताती है मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम। अब्दुल मलिक इस्मानी जो थे, किसके पैट्रोनेज थे? ये अलाउद्दीन बहमन शाह के थे, जो आगे जाके क्या बनाते हैं, बहमनी सुल्तानेत निकालते हैं। ये इसके गवर्नर थे। तो अब्दुल इस्मानी क्या लिखते हैं इसी टाइम में? फुतूस सलातिन। ओके, अब फिरोज शाह ने जो है कॉन्केस्ट के लिए भी काफी जगह गए। जगन्नाथपुरी मैंने आपको बताया, नगरकोट यानी कांगड़ा मैंने आपको बताया। तो ये बंगाल भी गए हुए थे 1353 1359। जयनगर को इन्होंने सराउंड किया हुआ था। ओके,
अब 1387 में इनकी हेल्थ जो है, फिरोज शाह तुगलक की हेल्थ जो है वो डिटोरेट होती है। ये अपने बेटे प्रिंस मोहम्मद को जो है किंग बना देते हैं, लेकिन प्रिंस मोहम्मद से जो नोबल्स थे वो खुश नहीं थे। ओके, सो इन्हीं के टाइम बनने के बाद 1 लाख स्लेव्स जो होते हैं वो रिबेल करते हैं, और इनको जो टाइटल है, जो किंग का टाइटल है, वो अपने ही ग्रैंडसन तुगलक खान को देना पड़ता है। 1388 में फिरोज शाह पास हो जाते हैं, सिविल क्राइसिस आ जाती है फैमिली में। इसी दौरान दो रूलर्स बनते हैं, नसीरुद्दीन मोहम्मद, नुसरत शाह। दोनों के दोनों अलग अलग जगह से रूल करते हैं, एक दिल्ली से करता है, ओके, एक तुगलकाबाद से करता है। लेकिन इन दोनों में ही नसीरुद्दीन जो है वो रियल किंग इमर्ज होते हैं। ओके, सो द इस्लामिक हिस्टोरियन सिरहिंदी एंड बीएम खंदी प्रोवाइड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दिस सिविल वॉर इन द फैमिली। तो ये जो सिविल वॉर चल रही थी नसीरुद्दीन मोहम्मद और नुसरत शाह के बीच में, ये इसका जो अकाउंट है आपको सिरहिंदी जो कि हिस्टोरियन है और बेहम खंदी दोनों के अकाउंट्स में आपको मिल जाएगा। अब नसीरुद्दीन मोहम्मद के रूल में क्या होता है? होता यह कि 1398 में समरकंद, मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान से, तैमूर जो है इंडिया में इन्वेड करता है। तैमूर जो है इन्वेड इंडिया में करना स्टार्ट कर देते हैं। नसीरुद्दीन मोहम्मद के टाइम से फिरोज शाह तुगलक के जाने के बाद ही जो है किंगडम जो है वो वीकनिंग होनी शुरू हो चुकी थी। आपकी बहामनी पहले ही अलग हो चुकी है। ओके, आपके गुजर्स ने अलग बना दिया, जाट्स ने छोटी छोटी टेरिटरीज अलग बना दी। तो जब तैमूर इंडिया में अटैक करने आता है, इन्हें अपोज करते अय्यार्स, गुजर, जाट्स, लेकिन दिल्ली सल्तनत इतनी वीक थी कि इसने कुछ भी नहीं किया। अब सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जागते हैं जब अटैक हो जाता है, अय्यार, गुजर और जाट जो ये हार जाते हैं, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद जो एक हिसाब से नींद से जागते हैं। मल्लू इकबाल के साथ ये क्या करते, अलायंस बनाते हैं और तैमूर के साथ बैटल करते हैं 1398। ओके, अब होता क्या है, तैमूर ये बैटल जीत जाता है। ओके, और अपनी जगह ये खिजर खान को जो है गवर्नर ऑफ मुल्तान बना के वापस समरकंद चल जाता। अभी इन्वेडर था, रूल करने का कुछ था नहीं। तो ये खिजर खान बहुत टाइम तक इन द नेम ऑफ तैमूर रूल करता है, और तैमूर इज सेड टू हैव किल्ड अबाउट 2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ओके, तो तैमूर जो है, तो जो जो इसके रास्ते में आता है, जो जो किंगडम आती है, सबको मारता है। खिजर खान के मरने के बाद खिजर खान जो है 1414 में सैयद डायनेस्टी बनाता है, अपनी डायनेस्टी बना देता है सैयद डायनेस्टी। अब जो सैयद है, सैयद कहा जाता है प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट्स को। जो प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट्स थे उन्हें कहा जाता। ओके, तैमूर जब दिल्ली को बिल्कुल खत्म करके चला जाता है, तुगलक आपके बिल्कुल घुटनों पे आ जाते हैं। गुजरात का गवर्नर जफर खान मुजफ्फरी डायनेस्टी लेके इंडिपेंडेंस बना लेता है, यानी गुजरात भी अब अलग हो चुका है। ओके, सो 14 सेंचुरी में या 1411 हम कहेंगे, 1411 में जो है गुजरात अलग हो जाता है, मुजफ्फरी डायनेस्टी ले चलती है। मुजफ्फरी डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो तुगलक का ही गवर्नर था, जफर खान मुजफ्फर। ओके, और ये गुजरात को जब अलग किंगडम बनाता है तो अहमदाबाद को कैपिटल रख देता है अपना। 1576 तक जो आपका गुजरात है ये इंडिपेंडेंट रहता है। ओके, ये इंडिपेंडेंट रहता है। फिर 1576 में यहां पे अकबर इसे कैप्चर करता है। ओके, खाली यही मौके का फायदा नहीं उठाते। ओके, जैसे ही तैमूर इन्वेड करता है, मलिक शिर्क
जो कि जौनपुर के गवर्नर थे, जौनपुर यानी यूपी में आता है, वो इस तैमूर के इन्वेजर का फायदा उठा के अपनी शिरकी डायनेस्टी शुरू कर देते हैं। ओके, शिरकी डायनेस्टी शुरू कर देते हैं। और ये हुसैन शाह जो है, हुसैन शाह इस शिरकी डायनेस्टी का लास्ट किंग बनता है। ओके, तो आपका गुजरात अलग हो चुका है, जौनपुर आपका अलग हो चुका है, बहामनी आपकी अलग हो चुकी है। ओके, तो ये सब किंगडम्स का बर्थ हो चुका है, विजयनगर अभी हो चुका है। तो ये तुगलक के एक तैमूर के एक अटैक ने इतना वीक कर दिया कि आपकी छोटी छोटी जो किंगडम्स है ये बननी शुरू हो गई। ओके, अब मालवा जो है, मालवा के ऊपर क्या असर पड़ता है? मालवा जो है आपका सेंट्रल पार्ट आ गया। मालवा जो था इंडिया के साथ जोड़ा किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने जोड़ा था। ओके, 1435 में दीवान खान जो इनका गवर्नर था मालवा का, वो इंडिपेंडेंस ले लेते हैं। सो गुजरात के सतपुरा से लेके मेवाड़ तक, आपका बुंदेलखंड तक, ये सब जो किंगडम थी, जो एरिया है, ये मालवा में ही आता था। ठीक, तो मालवा भी इंडिपेंडेंस ले जाता है किसके अंडर? दीवान खान के अंदर। मालवा भी बाद में जो है आपका मुगल से आके 1562 में वापस से दिल्ली एम्पायर के साथ जोड़ते हैं। ओके, सो ये था आपका 15वीं सेंचुरी का इंडिया। अगर हम देखेंगे तो यहां तो तैमूर ही था जो रूल कर रहा था। ओके, तो बाकी आप देखिए छोटी छोटी कितनी किंगडम्स बन चुकी थी, बामनी स्टेट अलग निकल चुकी थी, ओडिशा का गजपति हो गया, थाता यहाँ पे था गुजरात में आपका, मेवाड़ अलग हो चुका था, जौनपुर आपका अलग हो चुका था, ग्वालियर अलग हो चुका था। तो ये सब जो छोटी छोटी किंगडम्स बन रही है, नीचे आपका विजयनगर आ चुका था। ओके, तो ये जो छोटी छोटी किंगडम्स आपकी बन रही हैं, ये कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के एंड को डिनोट करते हैं। अब सैयद डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। 1440 में खिजर खान बनाता है। खिजर खान गवर्नर ऑफ मुल्तान था, जिसे कौन रख के गया था? तैमूर। अब सैयद जो है, सैयद को डायरेक्ट बोला जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के आगे के सक्सेसर्स हैं। प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली के जो बंदे थे या डिसेंडर्स जिसे कहेंगे, उन्हें सैयद कहा जाता है। ओके, आजकल तो बहुत सैयद आप देखेंगे, बहुत सारे सैयद से, लेकिन उस टाइम पे जो इनकी अहमियत बहुत थी। अब ये अपनी लीनियज कहां से निकालते हैं? प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी फातिमा और सन इन लॉ अली के वहां से इनकी लीनियज आती है। खिजर खान जो है कैप्चर करते हैं दिल्ली को 28 मई 1440 को, और वहां पे सैयद डायनेस्टी बना देते हैं। लेकिन ये डायरेक्टली अपने सैयद डायनेस्टी जो थी तुगलक की तरह डायरेक्ट रूल नहीं करते थे। ये रूल करने लगे एज रायत आला। रायत आला का मतलब क्या हो गया? एज वसाल, एज वेसल। वेसल किसके? टिमोरिड्स के। किसके? टिमोरिड्स के। तिमुर यानी तैमूर की फैमिली की। और ये कब तक इनके वेसल बन के रूल करते रहे? इवन एट द टाइम ऑफ जब तैमूर का ग्रैंडसन शाहरुख आया। शाहरुख जब तक रूल करता रहा तब तक ये उसी के नाम पे करते रहे। तो जब आप किसी के नाम पे रूल कर रहे हैं तो आप अपने नाम पे आप क्वाइन नहीं निकाल सकते। तो क्वाइंस जो थे वो किसके नाम पे निकलते थे? तैमूर के नाम पे। खिजर खान को सक्सीड करते हैं इनके बेटे मुबारक शाह। मुबारक शाह अपने आप को जो है क्वाइंस पे अपना नाम बताते, इन्होंने अपने नाम पे क्वाइंस निकाले और एक क्वाइंस पे अपने आप को बताते हैं म्यूजुद्दीन मुबारक शाह। ओके, तो तारीख मुबारक शाही जो इनकी, जिसमें इनके रूल के बारे में लिखा गया है, वो याह्या बिन अहमद सिरहंदी जो कि हिस्टोरियन थे। सिरहंदी हमने पीछे भी पढ़ा था, जो जिन्होंने तुगलक के जो सिविल वॉर को, जो तुगलक फैमिली की, जो उसमें, तो उन्होंने ये लिखी हुई है याह्या बिन अहमद सिरहंदी, उन्होंने लिखी हुई है तारीख मुबारक शाही। अब मुबारक शाह के मरने के बाद देखिए इनका कुछ इतना है नहीं, जल्दी जल्दी सब होता जा रहा है। ओके, क्योंकि अब वीकनिंग हो चुकी है, आपकी टेरिटरीज बहुत ज्यादा निकल रही है, तो
कहीं ना कहीं दिल्ली का जो एम्पायर है बहुत रिस्ट्रिक्ट होकर रह गया। एक स्टेज आएगा जब दिल्ली सल्तनत का एम्पायर दिल्ली से लेके पालम तक रहेगा, पालम एयरपोर्ट जहां पर है दिल्ली का। आफ्टर दिल्ली मुबारक शाह इनके नेफ्यू मोहम्मद शाह बनते हैं। ओके, ये अपने आप को सुल्तान मोहम्मद शाह कहते हैं, और ये फिर अपने बेटे सईद अलाउद्दीन शाह को नॉमिनेट करते हैं एज इज सक्सेसर। और ये सईद अलाउद्दीन शाह बहुत ही वीक रूलर थे, तो बहौल खान लोधी को जो ये अपने ये सारा साम्राज्य देके रिटायरमेंट ले लेते हैं। कहाँ चले जाते हैं? बदाऊं चले जाते हैं। सो सैयद डायनेस्टी का एंड कब होता है? जब मुबारक शाह के बेटे मोहम्मद शाह को देते हैं, और मोहम्मद शाह अपने ही एक इनकॉम्पिटेंट बेटे सईद अलाउद्दीन शाह को किंग बना देते हैं, और सईद अलाउद्दीन शाह बहूल खान लोधी को अपनी पूरी किंगडम देके बदाऊं चले जाते हैं, जहां पे वो मर जाते हैं। ओके, सो अब लोधी डायनेस्टी का स्टार्ट होता है। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो लोधी डायनेस्टी थी, अभी तक तो आप जितनी भी देख रहे हैं, जितनी भी डायनेस्टीज देख रहे हैं, वो तुर्किश ओरिजिन की थी। लेकिन लोधी डायनेस्टी जो थी फर्स्ट अफगान डायनेस्टी थी। लोधी डायनेस्टी वाज फर्स्ट अफगान डायनेस्टी। बहूल खान लोधी जो है इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? मैंने आपको बताया कि जो सईद का रूलर था अलाउद्दीन, उसको ये लोग उसके मजबूर कर देते हैं। वो इतना वीक हो जाता है कि वो अपने आप को रिटायरमेंट लेके बदाऊं चला जाता है और इनको रूलर बना देते हैं। ये गवर्नर थे सिरहिंद के, और इनका टाइटल जो था बहूल शाह गाजी था। एंड ऐसा कहा जाता है कि बहूल गाजी जो थे ओनली अफगान इन द एडमिनिस्ट्रेशन थे। ओके, अब बहूल खान लोधी का एक सबसे बड़ा इवेंट जो था इनके रूल का, वो क्या था कि ये जौनपुर को कॉन्केस्ट करते। जौनपुर मैंने आपको बताया शिर्की डायनेस्टी के अंदर था। जौनपुर जो था शिर्की डायनेस्टी के अंदर चला जा चुका था, तो उन्हें ये डिफीट करते। ये जौनपुर आपका, ये इसे जो वापस से जोड़ा जाता है दिल्ली सल्तनत के साथ, तो वो बहौल लोधी करते हैं शिर्की डायनेस्टी के किंग को हरा के। कौन से किंग को? हुसैन शाह को हरा के। ओके, सो ये चीज आप याद रख लीजिए, एक बड़ा फैक्ट है इनके ऊपर जो है हुआ। दूसरी बात क्या थी? सुल्तान मोहम्मद शाह कन्फर्ड ऑन हिम द टाइटल खाने खाना। अब मोहम्मद शाह कौन के थे? सईद के ही थे। तो क्योंकि ये उनके गवर्नर थे, तो इनको टाइटल दिया था खाने खाना, क्योंकि इन्होंने जो है कंट्रोल किया था किसको? खोकर्स को। एक नोटोरियस ट्राइब था आपके सिरंद वाले, अफगानिस्तान पाकिस्तान के एरिया में अगर आप देखेंगे तो एक नोटोरियस ट्राइब यहां पे रहता था, जिसे कहा जाता था खोकर्स। ओके, तो ये खोकर्स को इन्होंने हराया था, इनको कंट्रोल कर दी थी। ये लुटेरे थे एक टाइप के, तो इसलिए इनको मोहम्मद शाह जो सईद रूलर थे वो कहते थे खाने खाना। अब ऐसे ही बहूल लोधी तो एक एबल्ड गवर्नर है, ऐसे ही सईद डायनेस्टी को जो है गिरा नहीं सकते। इन्हें इनवाइट किया गया था। इनवाइट इन्हें किया था वजीर हामिद ने। लास्ट किंग जो सैयद का था अलाउद्दीन, उसके ये वजीर थे हमीद। जब इन्होंने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है, तो इन्होंने उसे इनवाइट कर दिया कि आइए आप, अब आप ही यहाँ पे किंगडम देखिए, क्योंकि बहुत पॉपुलर गवर्नर थे। लोधी डायनेस्टी के किंग बहूल सिकंदर इब्राहिम। इब्राहिम लोधी जो है, इब्राहिम लोधी के बाद जो है मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके साथ आके लड़ेंगे बाबर। ओके, डन। अब बहूल लोधी क्योंकि एक अफगान थे, ओनली अफगान थे, अफगान किंगडम बना चुके थे, तो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें सिर्फ अफगान नोबल्स थे, सिर्फ अफगान नोबल्स थे। हिंदूज या नॉन अफगानिज जो थे बिल्कुल भी नहीं थे। ये अपने आप को पीर कहते थे, सूफी सेंट कहते थे। अब जब कोई अपने आप को पीर कहता है, सूफी सेंट कह के रूल करता है, तो कहीं ना कहीं जो ऑर्थोडॉक्स नोबल्स थे वो भी इनका सपोर्ट कर रहे थे। ये अपने फेज में बहुत से इन्होंने कॉपर कॉइंस निकाले। ओके, अब
इनके जाने के बाद इनका बेटा निजाम खान, जिसे हम लोग सिकंदर लोदी कहते हैं, वो किंग बनते हैं। अब सिकंदर लोदी जो थे, इनकी जो मदर थी वो हिंदू थी, तो इल्तुतमिश को इनको खुश करना बहुत बड़ा जरूरी था। तो इसलिए इन्होंने कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो टेम्पल्स जो डिस्ट्रॉय हुए हैं वो सिकंदर लोदी ने किए। ओके, सिकंदर लोदी किसके लिए जाने जाते हैं? इन्होंने फाउंड किया है आगरा की सिटी। कब की? 1504 में। He built their lot of mosques. He was the first king to shift his capital from Delhi to Agra. He abolished corn duties. ट्रेड एंड कॉमर्स को बहुत ज्यादा फ्लोरिश करता था। ओके, एंड ही कंपेल्ड द पश्तून जो गवर्नर्स थे टू सबमिट देयर अकाउंट्स टू द स्टेट ऑडिट। अब ये सिकंदर जो लोदी जो थे पोइट भी थे। हिज पेन नेम वाज गुलरुख। ओके, he annexed the Bihar. Okay, he annexed Bihar and made a treaty with Alauddin Hussain Shah, who was the king of Bengal. He had a long case of revolt with Manasimha Tomar. Tomar was the king of Gwalior. He wanted to attack Gwalior. He wanted to get it back in Delhi Sultanate, but there was a stalemate. Whereas his father called himself a peer and nobles were giving a right hand, but he was against the nobles. He checked the nobles. To measure the land, he introduced Ghazi Sikandari. Okay, he had a well-organized spy system, developed agriculture, put several severe restrictions on Hindus. As I told you, his mother was Hindu, so he has to prove it to the ulemas. It is said that the Shehnai music flourished during his time because he loved Shehnai music. Work on music named Rajati Sikandar Shahi was created during his. So he has a lot. He has a lot in his pocket when it comes to the later. After the Tughlaqs, if any king has done something, it is Sikandar Lodi. Okay. Then there comes Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi was very arrogant. Okay, he once ऐसा कहा जाता है कि दौलत खान लोधी जो कि इसके चाचा थे और गवर्नर थे पंजाब के, तो इतने ज्यादा एरोगेंट थे कि उनकी इंसल्ट कर दी पूरे कोर्ट में। दौलत खान खुद लोधी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि आप इंडिया पे आके रूल करें अब। तो बाबर आते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं और यहाँ पे अब मुगल रूल आ जाता है। तो यहाँ पे बाबर थे, इन्हीं के चाचा दौलत लोधी ने उनको इनवाइट किया, पंजाब के थ्रू रास्ता दिया कि आप आके इब्राहिम लोधी पे अटैक करें। ओके, तो लेकिन अगर आप उस टाइम का इंडिया देखेंगे तो बहुत सारी किंगडम्स जो थी वो बन चुकी थी। खाली बिहार के साथ उन्होंने एनेक्सेशन कर दी थी, बाकी बहुत ज्यादा जो था वो आ गया था। ये बाबर का रूट। ओके, सो अब हम देखते हैं कि पूरी ओवरऑल जो दिल्ली सल्तनत है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। ओके, सो अभी हम जो चीज देख रहे हैं वो यही है कि एक बहुत बड़ा एम्पायर जो कि तुगलक्स के टाइम पे बिल्कुल पीक पे था, विच इंक्लूडेड सर्टन साउदर्न किंगडम्स ऑल्सो। ओके, सो दिस वॉज द टू बी परसेस द करेक्ट एक्सटेंट अगर हम एम्पायर की बोलें। तो वो लेटर आते आते जब जैसे हम चलते हैं इन द टाइम ऑफ लोधीज, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन वीकनेसेस, ड्यू टू नोबेलिटी, इक्तादारी, वो इतना रह जाता है। ओके, अब भले ही बाबर जो है काबुल से यहां तक अंदर एंट्री मार चुका था, लेकिन उसे ये छोटी छोटी किंगडम्स जितनी भी बनी हुई है इन सबसे डील करना है। लेकिन एक बाबर के आने का फायदा यह है कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका एंड हो चुका है। देयर इज नो दिल्ली सल्तनत नाउ। दिल्ली सल्तनत हैज एंडेड। नाउ व्हाट विल स्टार्ट इज मुगल रूल। ओके, सो this is how Babur, and this whole area was under Daulat Lodi, who easily facilitated कि बाबर दिल्ली तक जा पाए। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी दिल्ली सल्तनत की? मैंने जैसे कहा कि थर्ड अर्बनाइजेशन जो थी
इंडिया की थर्ड अर्बनाइजेशन वो तुगलक्स के टाइम पे हुई। थर्ड अर्बनाइजेशन जो है वो तुगलक्स के टाइम पे हुई। सो थर्ड अर्बनाइजेशन टुक प्लेस ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। डेवलपमेंट ऑफ इंडो पर्शियन कल्चर हुआ, इंडो पर्शियन कल्चर हुआ। लॉ जो था वो इस्लामिक लॉ था। जवाबित, जवाबित जिसे रॉयल ऑर्डर कहते हैं, जो प्रोक्लेम्ड बाय सुल्तान होते हैं। लेकिन ये जवाबित जो थे, जो रॉयल ऑर्डर थे सुल्तान के, इसे उलेमास जो है ओवरटर्न कर सकते थे अगर वो क्या है, अन इस्लामिक। ओके, तो व्हाट, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपके साथ कहा सकता है, व्हाट आर जवाबित्स? सो जवाबित्स वेर द रॉयल ऑर्डर्स। और ये काफी पीएससीज में ये क्वेश्चन पूछा भी गया कि व्हाट वर जवाबित्स। सो व्हाट वाज शरिया, इस्लामिक लॉ। लेकिन जवाबित्स को जो है ओवरथ्रो कर सकते थे उलेमास। स्टेट कैसी थी? थियोक्रेटिक थी, किंग वाज सुप्रीम, डिवाइन रूल था, मिलिट्री स्टेट थी। ओके, लेकिन दिल्ली सल्तनत आने से पहले कोई थियोलॉजी नहीं थी स्टेट की। जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत नहीं थी तो जो रूल होता था, जो लॉ था, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन शरिया, इट वाज बेस्ड ऑन धर्मा। इट वाज बेस्ड ऑन धर्मा। अब दिल्ली सल्तनत के आने के बाद क्या हो गया, जो लॉ था वो उसकी बेस क्या बन गई, रिलीजन। खलीफा जो था वो इंपॉर्टेंट बन गया। 3 सुल्तान जो थे वो ये कहते थे हम खलीफा के नाम के बिहार पे रूल करते। अब मैंने शायद थोड़ी देर पहले आपको अलाउद्दीन खिलजी का सो से करेक्ट कर लीजिए, वो अलाउद्दीन खिलजी नहीं, वो इल्तुतमिश था। तो पहला इल्तुतमिश था, मोहम्मद बिन तुगलक था और फिरोज शाह तुगलक था। सो 2 तुगलक्स एंड 1 स्लेव डायनेस्टी का। दे ऑल द 3 रूल्ड किए किसके नाम पे, ऑन द बिहाफ ऑफ खलीफा रूल करते। ओके, इट वाज मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी जो खलीफा की अथॉरिटी को नहीं मानता था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी आपकी, सुल्तान हेड पे था, फिर नायब सुल्तान होता था। नायब सुल्तान मोस्टली जो है इसका बेटा होता था। भले ये पोजीशन जो थी लाइक प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये एक ओकेजनल पोस्ट थी, हमेशा नहीं होती थी। इसकी पावर इनके पावर सेम थे। अगर सुल्तान जो है बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका है तो अपना यंग जो बेटा है उसको वो नायब सुल्तान होगा। इनके नीचे इनका एक प्राइम मिनिस्टर होता था जिसे वजीर कहा जाता था। ओके, और यही वजीर जो है फाइनेंस भी देखता होता था। फिर सर्टन जो थे डिपार्टमेंट्स थे। पहला डिपार्टमेंट जो था वो था दीवान अर्ज, वो आपका मिलिट्री देखता था। ओके, ये दीवान अर्ज जो है आपकी मिलिट्री डिपार्टमेंट देखता था। फिर दीवान रिसलत होता था। दीवान रिसलत ये आपका फॉरेन अफेयर्स देखता था कि साथ वाली किंगडम्स के साथ क्या पैक्ट करना है, ये सब ये दीवान रिसलत देखना था। फिर सदर और सदर होता था, ये रिलीजियस हेड होता था। इसका काम होता था ये देखना कि जो इस्लामिक लॉज है जितने भी, यानी जो शरिया है वो सेफ गार्ड रहे। फिर अमीर मजल शाही होता था, ये फेस्टिवल्स देखता होता था स्टेट के सब, और ये देखता था कि जो अरेंजमेंट्स है फेस्टिवल्स में वो कैसे बने। फिर दीवान इंशा होता था, ये कॉरेस्पॉन्डेंस का था, अगर किंग को मैसेज पहुंचाना है अपने नोबल्स तक था या लोगों तक तो ऐसे वो थ्रू दीवान इंशा पहुंचता था। इसके साथ कुछ और जो डिपार्टमेंट्स है वो टाइम टाइम पे किंग्स ने ऐड किए, वो हमने वहीं पे राइट डाउन किए हुए। ओके, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे जैसे हम देख रहे हैं दीवान बंदोबस्त, ये सब तो ये जो स्लेव के साथ डील करता था, दीवान खिदमत जो एड के साथ डील करता था, तो ये भी आपने वहीं पे खत्म करना। सुल्तान जो था आपका लीगल हेड था, ब्यूरोक्रेसी का हेड था, चीफ एग्जीक्यूटिव था, हाईएस्ट पावर ऑफ अपील था और कमांडर इन चीफ था मिलिट्री का। ओके, तो यानी डिवाइन राइट के अंदर सब पावर्स जो थे वो एक ही पर्सन के पास, देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स। ओके, फिर नायब सुल्तान फैमिली मेंबर होता था जैसे मैंने कहा। मुशर्रफ मुमलिक, अब जो वजीर है जो कि आपका अकाउंट्स भी देखता था, वजीर के अकाउंट्स देखने के लिए 2 बंदे होते थे इसके अंदर, मुशर्रफ मुमलिक जो कि अकाउंटेंट होता था और मुस्तफ़ा मुमलिक जो कि ऑडिटर होता था, जो ऑडिट करता था। तो ये 2 ऑफिसर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो वजीर के अंदर जो है ये 2 ऑफिसर होते थे, मुशर्रफ मुमलिक जो कि अकाउंटेंट होता था, मुस्तफ़ा मुमलिक जो ऑडिटर होता था। अब आता है अरीज मामलिक जो कि मिलिट्री के साथ डील करता था। इसके डिपार्टमेंट को कहते हैं दीवान अरीज। ओके, अब जो ये अरीज था ये मिलिट्री का सुप्रीम कमांडर नहीं था, क्योंकि मिलिट्री का जो सुप्रीम कमांडर था वो किंग था।
तो अरीज का काम क्या होता था? रिक्रूट करना, इक्विप करना और आर्मी को पे करना। फिर दीवान रिसलत आपका आ गया। ये जैसे मैंने आपसे कहा रिलीजियस मैटर्स के साथ डील करते थे। सदर उस सदर जो होता था इस डिपार्टमेंट को हेड करता था। ओके, फिर आता था दबीर मुमलिक। ये जो थे दबीर मुमलिक वो थे जो दीवान इंशा, जो कॉरेस्पॉन्डेंस का डिपार्टमेंट है, उसको हेड करते थे। तो ये वो मिनिस्टर थे जिसे दबीर मुमलिक कहते थे, जो दीवान इंशा के सो हेड करते थे। इंशा डील विद कॉरेस्पॉन्डेंस। फिर आपका काजी मुमलिक आता था। ये जुडिशियल डिपार्टमेंट के हेड होते थे। जुडिशियल डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? काजीउल कुजत। ओके, और यही काजीउल मुमलिक थे, ये फतवा वगैरह भी इशू करते थे। फिर आता था बरीद मुमलिक, जो कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पाई था उसके हेड होते थे। फिर दीवान अमीर कोही आता था। अमीर कोही, कोही एग्रीकल्चर। ये किसने दीवान अमीर कोही का उसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, जब ड्राउट आ गया था। उसमें अदर ऑफिशियल्स होते थे लाइक वकील दोरमल, जो हाउस होल्ड पैलेसेस देखता था। अमीर हजीब, जो कि विजिटर्स को देखता था सुल्तान के। अमीर शिकार शाही, हेड ऑफ द हंटिंग। ओके, अमीर मजलिस शाही, जो कि फेस्टिवल्स को देखता था। सारे जलंधर, जो हेड ऑफ सुल्तान बॉडीगार्ड होता था। ये कुछ किंग्स थे। अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी। अब प्रोविंशियल में क्या था? मेन एम्पायर को छोटी छोटी प्रोविंस में तोड़ा गया था, जिससे आप कहते थे इक्ता या वलियत। ओके, वलियत कहा जाता था। और जो इनको हेड करते थे उसे मुकित्स कहा जाता था, या वलीज कहा जाता था, या नईम कहा जाता था। तो जो एक एक प्रोविंस को यानी स्टेट को जो जो हेड करेगा उसे या तो मुकित्स कहेंगे, वलीज कहेंगे, या नईम कहेंगे। इनका काम क्या होता था? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कंट्रोल ऑफ आर्मी, एक्स्ट्रा जुडिशियल फंक्शन इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस। ओके, तो इनके अंदर भी सेम वैसे ही डिपार्टमेंट्स होते थे जैसे किंग के उधर थे। ओके, सेम वैसे ही काम था। फिर उसके बाद एक लोकल गवर्नमेंट भी यहाँ पे होती थी। अब प्रोविंस जो थी आपकी इक्ताज, इक्ताज को और छोटे छोटे के में तोड़ा गया था। जैसे हमारी स्टेट्स के बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे उसे शिक्स कहा जाता था। और जो ऑफिसर शिक को देखता था उसे शिक्कादर कहते थे। और शिक्स जो थे, डिस्ट्रिक्ट्स जो है नीचे छोटे छोटे ब्लॉक्स में टूटे होते, यहाँ पे भी तोड़ते, जिसे परगनास कहा जाता था। परगनास को हेड करते थे अमील, जो यहाँ के रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ओके, मुशरिफ जो थे यहाँ के अकाउंट देखते थे। ओके, काजी जो खजानदार था वो आपकी ट्रेजरी देखता था। काजी जो था वो जुडिशियल केसेस देखता था। और परगनास जो है आपकी छोटी छोटी और सेवरल विलेजेस में बटे होते थे। ओके, सो विलेज वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, यहाँ पे आपके पंचायत होती थी, चौधरी होता था, पटवारी होता था, मुकादम होता था, चौकीदार होता था, ये सब होते थे। ये एजुकेशन वगैरह आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या क्या थे इनके पास? सबसे पहले तो उशर, लैंड टैक्स। ये मुस्लिम सब्जेक्ट से लिया जाता था, 5 to 10% ऑफ प्रोड्यूस। खर्च जो है ये हिंदू से लिया जाता था, 1/3 to 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस। तो आप डिफरेंस देखिए, मुस्लिम से 5 to 10% ले रहे हैं, लेकिन जो नॉन मुस्लिम यानी हिंदूज हैं उनसे 1/3 और हाफ ले रहे हैं। हिंदूज जो लैंड टैक्स पे करते उसे खर्च कहते थे, मुस्लिम जो पे करते उसे उशर कहते थे। फिर आ जाता है खम। खम मैंने आपसे ये कहा था, खम वो टैक्स था जो कलेक्ट किया जाता था माइन से। अगर किसी को कोई माइन में या कुछ माइनिंग करते हुए कोई पैसा वो कमाता है, तो उसका 1/5 जो है उसे किंग को देना होता था, उसे खम कहा जाता था। फिर था जजिया, रिलीजियस टैक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स, 12 दिरहम से 48 दिरहम तक दिया जाता था, बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ नॉन मुस्लिम्स। हिंदूज वेयर द वर्स्ट हिट क्लास ऑफ दिस टैक्स। फिर ज़कात होता था, जो कि मुस्लिम टैक्स है। ओके, 2.5% होता है, जो उनकी इनकम में उसका 2.5% होता है। ओके, अब गवर्नमेंट ने जो है रेवेन्यू के लिए डिपार्टमेंट्स बनाए हुए थे, वजीर से लेके गांव के चौधरी तक, उन सब का यही काम होता था कि वो टैक्स कलेक्ट करे। फिरोज शाह तुगलक ने जो है, अगर आपको पता हो, गज़े फिरोज शाही लाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो बहुत सारे कैनाल्स बनाए। ओके,
बहुत सारे कनाल्स बनाए, तो एक रिफॉर्म्स लाए उसने ताकि बढ़ पाए आपका जो रेवेन्यू है। इसके बाद जो सिकंदर लोधी होते हैं गाजी सिकंदरी लाते हैं ताकि लैंड का एक्यूरेट मेजर हो सके और वो अच्छे से कलेक्ट कर पाए। ओके, फिरोज शाह तुगलक ने भी लैंड मेजरमेंट लाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने भी लाया था, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर जो एक्यूरेट था वो सिकंदर लोधी गाजी सिकंदरी था। ओके, सो दैट्स ऑल। और यहाँ से के बाद जो है शुरू होता है आपका मुगल्स, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।